everyone. Yes, ma'am. ma'am. Looking at the screen is Galileo Galilei and Sir Isaac Newton's images. So we have started the chapter Force and Laws of Motion, and in that we have started with the ideas which were given by the earlier scientists. ये दोनों साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली और सर आइजैक न्यूटन ने आइडियाज दिए थे अलग अलग मोशन के, जो हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी लिखे थे। और न्यूटन की कंट्रीब्यूशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज न्यूटन फादर ऑफ फिजिक्स भी है और न्यूटन हमें लॉज भी देता है मोशन के। जो ब्लॉक आपको टेबल पे दिख रहा है, एक ब्लॉक, दैट ब्लॉक इज इफ वी विल पुश इट पर्पल कलर ब्लॉक from our hand to one side, then the block will move, is going to move. So this activity tell us that applying of push or pull, that is force, will change the state of object. अगर कोई रेस्ट में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो मोशन में आ जाता है because of push or pull. This concept was clear to you everyone? Yes, ma'am. Now what about pulling? From behind we were pushing the block, but from front if we attach a hook into the block, there is a green color block and a hook is attached to it and some threads are tied to that. From the help of the thread, we are pulling the thread and we are getting the block will move. So 9th यहाँ पे आएगी. So पुलिंग से भी हम बोलते हैं कि पुलिंग से भी ब्लॉक मूव होता है. That is also example of motion produced by the force. Does this amount of the force, will this change the speed of the block? If we are going to push it with very much strength, if we increase double triple the force, can the block moves faster? दिस इज माई क्वेश्चन कि अगर मैं ज्यादा जोर से फोर्स लगाऊंगी, जैसे मैं पहले केस में पर्पल बॉक्स पे पुशिंग का फोर्स अगर ज्यादा जोर से लगाऊंगी, पहले जितना लगा रही थी उससे डबल लगाऊंगी, ट्रिपल लगाऊंगी, तो क्या ब्लॉक फोर्स फुली मूव करेगा, तेज मूव करेगा या स्लो मूव करेगा? फास्ट मैम, फास्ट मूव करेगा. फास्ट मूव करेगा. जितना हम फोर्स बढ़ाएंगे उतना ही उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा. So that is the second law के by the force applied will be directly proportional to the change of momentum. Initial velocity अगर 0 थी तो अब उसकी final velocity 10 मीटर पर सेकेंड या फिर 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगी और ब्लॉक उस वेलोसिटी से जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा मोमेंटम क्रिएट करेगा. पुलिंग के केस में भी यही होगा. अगर मैं बिल्कुल धीरे धीरे ड्रैग करके खींच रही थी, मैं अगर बहुत तेज ड्रैग करके खींचूंगी तो जितना मैं फोर्स लगाऊंगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा उसका मोमेंटम ब्लॉक का, वो भी उतने ही फोर्स से मूव करेगा. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. The definition also is written that push or pull, general definition of force is written that push and pull on a body is called force. Are you all able to see it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now there are some Mama. examples like pulleys. Yes, Naina? Ma'am, I have also written a definition of force. Yes, tell me. Which A definition? force is an ma'am force. A force is an any interaction that will change the motion of any object. Yes. Force Any interaction if we are doing, just like the second example is shown on the screen. Some person is pulling the two blocks which are connected to one another, and the first one is having hook and they have tied it to the pulley, rope of a pulley, and they are pulling it. So pulley is a simple machine. Pulley is having the a roller type thing on which the rope is moving, and we are easily able to upload the forces on it. Through the help of the pulley, we can pull the things from depth to the height. Just like construction is going on somewhere, you might have seen के
नीचे से पानी ऊपर पहुंचाने के लिए वो क्या करते हैं, ऊपर अगर पुली बांध ली है उन्होंने और नीचे से सामान ऊपर पहुंचाने के लिए वो उस पुली में उसका हुक से बांध देते हैं उस सामान को, ऊपर से उस सामान को खींच लेते हैं। तो पुली की मदद से हमेशा नीचे से सामान ऊपर आराम से चला जाता है। तो इसमें भी जब जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे पुल करने के लिए उतनी जल्दी ही सामान ऊपर पहुंचेगा। सो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि पुल आपका लोकेशन चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट्स की। तो ये 2 ब्लॉक्स नीचे रखे हुए थे, पुलिंग करके हम इसे ऊपर पुली की मदद से लेके आ सकते हैं, हाइट पे पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट पुश और पुल से हम क्या कर सकते हैं, नीचे पर्पल कलर की बॉल है, वो हो सकती है स्पॉन्ज की बॉल हो, उनपे जब हम दोनों पाम से फोर्स लगाएंगे तो बॉल क्या हो सकती है, स्क्वीज हो सकती है, स्क्वीज होंगी तो बॉल बिल्कुल छोटी हो सकती है। अगर वो स्पॉन्ज की बॉल है तो देयर शेप विल बी चेंज्ड, शेप चेंज होगा उनका। इज इट क्लियर? तो फोर्स पोजीशन चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट की, शेप चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट की। और किसी रेस्ट से ऑब्जेक्ट को मोशन में भी ला सकता है। टेस्ट को मोशन में भी ला सकता है। एंड जब हम और भी चीजें करते हैं फोर्स से, जैसे हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम सामान को होल्ड करके रख सकते हैं हाथ में। अगर हमारे हाथ में नेसेसरी फोर्स ही नहीं होगा हमारे हैंड के मसल्स में, बोन्स में, तो क्या हम कोई ब्लॉक को अपने हाथ पे रख सकते हैं? वी कैन नॉट होल्ड इट एट रेस्ट ऑल्सो, क्योंकि वो हमारे हाथ से फिर ग्लाइड हो जाए। जैसे Yes, हमारे ma'am. हाथ में जब हम कोई भी चीज उठाते हैं तो वी शुड नीड सम स्ट्रेंथ, हमारे पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए उतनी कि वी कैन होल्ड द थिंग्स। तो थर्ड इमेज में आपको दिख रहा है एक ब्लॉक रखा हुआ है एक पर्सन ने हाथ पे। नेक्स्ट इमेज में आपको दिख रहा है कि क्लैपिंग कर रहा है पर्सन। तो क्लैपिंग कर रहा है तो साउंड भी, जितनी तेज हम क्लैपिंग करते हैं उतनी तेज साउंड प्रोड्यूस होती है। सो वी कैन डू मेनी थिंग्स फ्रॉम पुश और पुल। कैरम आपने खेला होगा, इज द इमेज ऑफ कैरम विजिबल टू यू? Yes, ma'am. यस मैम। तो कैरम जब हम खेलेंगे तो क्या होता है, इसमें हमें जो गोल्स होते हैं 4 कॉर्नर्स पे, इसमें होल्स हैं कैरम में, तो हमें जो भी व्हाइट कॉइन्स होते हैं और ब्लैक कॉइन्स होते हैं वी हैव टू एम दैट, एंड थ्रू अवर मेकिंग द एम स्किल्स कि हम एम कितना अच्छा लगाते हैं, स्ट्राइकर से हमें उन व्हाइट कॉइन और ब्लैक कॉइन्स को इन होल्स में डालना होता है। जितने कॉइन्स हम डालते हैं उतने हमारे पॉइंट्स होते हैं। व्हाइट कॉइन 20 का होता है और जो ब्लैक कॉइन होता है वो 10 का होता है। एंड पिंक रानी होती है इसमें, क्वीन वो 50 की होती है, और उसके लिए हमें उसकी एक और कोई भी कॉइन उसके लिए लेना होता है एज अ असिस्टेंट। जैसे बोलते हैं कि दासी होती है वो रानी की, तो वो भी उसके साथ जानी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ये इमेज क्या आपको शो कर रहा है, इज शोइंग दैट वी हैव टू एम different coins through different angles, placing the striker at different position। जैसे जैसे हम पोजीशन बदलेंगे कैरम में, हम अलग तरह के कॉइन को एम कर सकते हैं और उसको निकालने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपने कैरम खेला होगा तो आपको पता होगा कि हमें अलग अलग जगह से शॉट लगाने पड़ते हैं, ताकि कभी हम बैक शॉट, रिवर्स शॉट लगाते हैं तब हमारा अपने ही तरफ के होल में कॉइन जाता है। So what we are doing, we are changing the positions of the coin and we are also giving them velocity। हम उनको velocity भी दे रहे हैं जिससे वो मूव होके हमें पॉइंट्स गेन करवाते हैं और जिससे वो हमारे हो जाते हैं कॉइन्स। इज इट क्लियर? यस मैम। तो कैरम भी हमें ये समझाता है, बट गेम स्टार्ट करने से पहले जब हम ब्लैक कॉइन और व्हाइट कॉइन का टावर बनाते हैं, क्योंकि हमें गेम स्टार्ट करने से पहले टावर बनाने होते हैं दोनों कॉइन्स के, तो तब हम अगर स्ट्राइकर से उन्हें हिट करते हैं तो ऐसा कभी कभी होता है कि नीचे से सबसे लास्ट वाला जो कॉइन होता है जिसमें स्ट्राइकर डायरेक्टली हिट होता है वो मूव करके थोड़ा आगे तक चला जाता है, होल के पास तक चला जाता है। होता है ऐसा? Yes, ma'am. और Yes, ऊपर के ma'am. जो पाइल थे, ऊपर के जो व्हाइट कॉइन के पाइल थे और ब्लैक कॉइन के पाइल थे, वो फॉल हो जाते हैं, दे फॉल डाउनवर्ड ऑन द कैरम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये किस लिए होता है? Why this happens? This happens because of the inertia. क्योंकि जब आपका लास्ट बेस का कॉइन पे स्ट्राइकर हिट किया था, तो वो स्ट्राइकर ने, वो मोशन में था स्ट्राइकर, तो वो लास्ट वाले कॉइन को मोशन में ले आया, जिसके मोशन में लाने से आपका वो कॉइन निकलकर थोड़ा आगे तक होल की तरफ मूव कर गया। और ऊपर वाले कॉइन सब रेस्ट में थे, तो वो अपनी पोजीशन, रेस्ट की पोजीशन को मेंटेन करने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो दे विल नॉट मूव, दे विल फॉल डाउन टुगेदर, वो एक साथ गिर जाते, टावर आपका फॉल कर जाता। ये आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब आप गेम स्टार्ट करते हो जस्ट। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई द लास्ट कॉइन ओनली कम इन मोशन एंड द रेस्ट कॉइन फॉल डाउन, तो व्हाट यू विल राइट? आंसर क्या होगा इसका? रीजन क्या होगा? विल गिव मी द आंसर। मैम जैसे कि स्ट्राइकर उस पर डायरेक्टली हिट करता है तो उस पे फोर्स लगती है और वो आ जाता है उसमें, उसमें Yes, क्या कहते हैं? the coin on which the striker is directly hitting, because the striker is also in motion, it will bring that coin in motion, and therefore due to motion, due to velocity, that coin will move ahead, and rest of the coin, as they were in the rest in the tower, they are going to remain in the rest and they will fall down directly. Clear? Yes, ma'am. So this is the property क्या है ये? of the last coin to come in क्या? the motion because the striker has hit it. So this अब बता property क्या is inertia of क्या भेजा तुमने? motion. इसका inertia ये motion का inertia जिससे coin motion में आ जाता है। और जो बाकी जो गिर गए उनमें कौन सा inertia था? मैम ये इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है एक ऑब्जेक्ट्स की जो किसी भी चीज को रेजिस्ट करते हैं, अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहते हैं। जैसे लास्ट कॉइन पे जब स्ट्राइकर ने हिट किया तो वो स्ट्राइकर मोशन में था, तो लास्ट कॉइन मोशन में आ गया, वो अपने अपने मोशन को रोक नहीं पाया, मोशन में चला गया, और बाकी कॉइन रेस्ट में थे, तो वो अपनी जगह से थोड़े से स्लाइटली बेंट होकर गिर गए सारे के सारे, क्योंकि वो उनमें डायरेक्टली स्ट्राइकर हिट नहीं किया था। तो द ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन रेस्ट टेंड्स टू रिमेन इन रेस्ट, उनमें ये प्रॉपर्टी होती है, जो रेस्ट में ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में ही रहते हैं जब तक उनपे किसी ने बाहर से फोर्स नहीं लगाया, क्योंकि स्ट्राइकर ने तो लास्ट वाले कॉइन को ही हिट किया था, तो फोर्स लास्ट वाले पे लगा था, तो लास्ट वाला मोशन में आ गया और बाकी सब किस में रहे? रेस्ट में। इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। ओके मैम। पुश और पुल से हम हैमर्स करके चीजों को ब्रेक भी करते हैं। We hammer the things and we can break the things. This is also one example or effect of force. Now a body as rest can be moved by force. A body in motion can be stopped by force. तो दो चीजें होती हैं फोर्स से, कोई रेस्ट में अगर बॉडी है तो उसको मूवमेंट में लाया जाता है फोर्स से, और कोई मूविंग बॉडी है तो उसे रेस्ट में लाया जाता है फोर्स से। Is it clear? Yes, ma'am. ओके Now मैम। coming, a body is in motion can be changed in its direction of motion by force. कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है फोर्स से, जैसा कि हमने कहा देखा था कैरम में, हम जिस भी डायरेक्शन में चाहें अपने कॉइन्स को स्कोर कर सकते हैं। हमारा मन कर रहा है हम दूसरी तरफ एम लगा सकते, हमारे सामने दो पोर्स होते हैं, तो हम दोनों में से किसी में भी जिसमें हमें मन करता है उसमें कॉइन डाल सकते हैं। इज इट पॉसिबल? एम आई राइट कि हम अपने सामने Yes, वाले ma'am. साइड के दो पोर्स में कैरम के कॉइन डाल सकते हैं? तो क्या हम अपने स्ट्राइकर की चेंज करने से डायरेक्शन अपने कॉइन्स को ले सकते हैं? यस हाँ। मैम। तो ये एग्जांपल हो गया कि बॉडी मोशन में कैन बी चेंज्ड इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स से हम उसका डायरेक्शन बदल सकते हैं। कभी कभी हम रिवर्स शॉट भी लगाते हैं, the coin is in just in front of us, but when we hit it and when we hit it with very force, it can come and go in the pore which is nearby to us.
तो रिवर्स शॉट से क्या होता है, रिवर्स तरफ अगर कोई और के पास कॉइन होता है, सामने हमारे बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है, तो हम एम्प्टी स्पेस में ही मार देते हैं स्ट्राइकर। स्ट्राइकर वहां से टच होके पीछे आ जाता है और उस वाले मैम कॉइन को गिराता है। तो क्या हमने फोर्स से डायरेक्शन चेंज करी Yes, ma'am. मोशन की? यस मैम। मैम इस तरह से हम मोशन की डायरेक्शन भी फोर्सेस से चेंज कर सकते हैं। बॉडी ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल दिया है जो स्प्रिंग है। स्प्रिंग को हम खींच रहे हैं दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से, और वो स्प्रिंग का एक्सपेंशन हो रहा है। स्प्रिंग स्ट्रेच हो सकती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है उसमें जब फोर्स लगता है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और वापस कंप्रेस कर दें हम अंदर की तरफ उस स्प्रिंग को खींचें तो क्या वो छोटी हो जाएगी? Yes, ma'am. जब हम अंदर की तरफ अपने हैंड्स को पास लाएंगे तो स्प्रिंग कैन ऑल्सो डिक्रीज इट्स लेंथ, एंड व्हेन वी मूव अवे आवर हैंड्स टू बोथ द एक्सट्रीम पॉइंट्स द स्प्रिंग विल इंक्रीज इट्स लेंथ। The body or the spring can be changed, compressed in its shape or size by force. So force is changing the shape and size of the spring. So we are revising it. Let us revise. I want any one of you to read it. The points, the force can be doing. What are the effects of force? Ma'am, Anyone? can I? Yes, read it. Effects of force, revisit. First, a force can move a stationary body. Second, Yes, a force can stop a the stationary body means at rest. कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसे मोशन में लाता है फोर्स। Second, a force can stop a moving object. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो फोर्स उसे स्टॉप कर सकता है। करेक्ट। Third, a force can change the speed of a moving object. अगर मान लो कोई कार चल रही है और हम उसमें थोड़ी सी और पीछे से फोर्स लगाएं तो वो स्पीड चेंज कर लेगी अपनी। यस, हम एक्सेलरेट करते हैं जब अपनी कार को हम 40 की स्पीड से 60 पर आते हैं तो वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ आवर कार ऑल्सो। और फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, जैसे कि कैरम बोर्ड में हो रहा था, स्ट्राइकर चेंज कर रहा था अपनी डायरेक्शन को। यस, फोर्स बॉडी हमारे पर डायरेक्शन शॉट को भी, से। चीजों को भी चेंज करता है। इवन अगर हम एक और चीज पे ध्यान दें, कोई कर्व होता है और हम साइकिल पे जा रहे होते हैं तो हमें कर्व के साथ साथ अपनी साइकिल को थोड़ा बेंड करना पड़ता है। डू वी डू इट? हमें साइकिल को कर्व के पॉइंट पे बेंड करना पड़ता है क्योंकि अभी तक तो हम स्ट्रेट चल रहे थे, पर अभी हमें क्या करना पड़ेगा क्योंकि रोड कर्व है तो हमें अपनी साइकिल को भी थोड़ा क्या करना पड़ेगा, सेंटर की तरफ झुकाना पड़ता है। इससे क्या होता है, हमारी डायरेक्शन भी मूविंग, हमारी साइकिल चल ही रही थी, अब तक स्ट्रेट चल रही थी, पर अभी हमें यू टर्न लेना है तो क्या हमें अपनी साइकिल को थोड़ा बेंड करना पड़ेगा? क्या स्ट्रेट चलते ही हमारी साइकिल बेंड हो जाएगी, यू टर्न पे मुड़ मैम जाएगी? बेंड करना पड़ेगा। नहीं हो सकती ना, कि अगर हमें यू टर्न लेना है तो हमें बेंड करनी ही पड़ेगी अपनी, ताकि हमारी डायरेक्शन बदले। तो मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी फोर्स चेंज करने पर बदलती है। Fifth, a force can change the shape and size of a body. फोर्स Example, शेप और साइज भी बदलता है ऑब्जेक्ट का, जैसे स्प्रिंग में हमने भी देखा था, स्प्रिंग को हम बड़ा कर रहे थे, स्प्रिंग को हम छोटा कर सकते हैं। नाउ फोर्स इज एन, एग्जाम्पल हाँ बताइए। मैम एक एग्जांपल इसका ये भी हो सकता है कि जैसे हम लेमन को स्क्वीज करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है क्योंकि हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका जूस निकालने के हाँ, लिए। तो उसका जूस भी निकल जाता है और उसकी शेप तभी हो सकता है अगर हम प्रॉपरली उस पे फोर्स लगा के उसको स्क्वीज करें। हम डो नीड करते हैं, हम जब व्हीट फ्लावर को नीड करते हैं चपाती बनाने के लिए तो हमें भी वाटर के हेल्प से डो बनाना पड़ता है, जिससे हम उसको पहले से उसका पेड़ा बनाते हैं गोल सा रोटी का, एंड देन भी रोलिंग पिन पे भी हम उसका फोर्स लगा के उसे फ्लैट करते हैं, तब जाके वी गेट अ चपाती एंड देन वी कुक इट, उसको स्टीम करके पकाते हैं। सो फोर्स इन्वॉल्व है इन सब चीजों में। जो मदर किचन में वर्क करती हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग वर्क, बट देयर वर्क इज मस्कुलर वर्क, देयर वर्क इज which we giving us food, serving us food, doing the work for us is a type of muscular work. Is it clear? Yes ma'am. Force, Ma'am. a force is an influencing agency which tends to move a stationary body
or which tends to stop a moving body, or which tends to change the velocity, speed or and direction of a moving body, फोर्स इतनी or सारी which चीजें कर सकता है। फोर्स एक ऐसी एजेंसी है जो कि मूव करती है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को। फोर्स एक ऐसा टेंड करता है, स्टॉप करता है मूविंग ऑब्जेक्ट को। फोर्स टेंड्स टू चेंज द वेलोसिटी, भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, शेप भी चेंज कर सकता है। यहाँ क्या हाईलाइटेड चीजें हैं? मूव अ स्टेशनरी बॉडी, स्टॉप अ मूविंग बॉडी, change the velocity and change the shape. shape. Is it clear, Yes, ma'am. everyone? Yes, ma'am. Now next, balanced and unbalanced force. This also I have explained you with an example कि अगर सेम ऑब्जेक्ट पे दो तरफ से अलग अलग वैल्यू का फोर्स लग रहा है तो वो अनबैलेंस्ड हो जाता है। जैसे यहाँ पर मान लो 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं हम, ठीक है? तो 50 न्यूटन फोर्स लगाएंगे एक तरफ से, 50 न्यूटन इस हैंड पे से 50 न्यूटन लगा रहे हैं, और दूसरे हैंड पे हम लगा रहे हैं 10 न्यूटन। सिर्फ 10 न्यूटन, ये थोड़ा सा कम फोर्स लगा रहा है इस तरफ। तो एलएचएस में हम लोग ने ज्यादा फोर्स लगा रखा है इधर 50N, एंड आरएचएस में हमने कम फोर्स लगा रखा है, दैट इज 10N। तो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड फोर्स है ये? इट इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स? दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। सो जब हम इसे Unbalanced माइनस force. करेंगे, सो 50 में से हम लोगों को 10 माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा क्या आंसर आएगा? 40 न्यूटन 40 फोर्स Newton. आएगा, और ये ब्लॉक जिस तरफ ज्यादा फोर्स था उस तरफ मूव कर जाएगा। 50 माइनस 10 दैट इज 40, एंड द ब्लॉक विल मूव टुवर्ड द from 40 न्यूटन फोर्स, द ब्लॉक इज गोइंग टू मूव टुवर्ड दिस साइड। इस साइड मूव करेगा, जहां पर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उस तरफ मूव करेगा ब्लॉक। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. तो अनबैलेंस्ड फोर्स मोशन कॉज करता है, और वो उस तरफ को बॉडी को मूव कराता है जिस तरफ वैल्यू ज्यादा होती है अप्लाइड फोर्स की, एंड हम डिफरेंट डायरेक्शन के फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन के फोर्सेस को ऐड करते हैं। ये हमने 8th में भी पढ़ा था। पर वहीं अगर दोनों तरफ 50-50 न्यूटन फोर्स ही होते, दोनों तरफ 50 न्यूटन फोर्स होते, तो क्या होता? देन द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। ये रेस्ट में रखा हुआ था पहले, मूव कराने से पहले ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में लगा हुआ था। जब तक हम इसे हैंड से इसके थ्रेड्स को खींच नहीं रहे थे, जब तक ये रेस्ट में था, तो ये ओरिजिनल स्टेट मेंटेन रखेगा। अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स 50 न्यूटन ही लग रहा है, इधर भी 50 न्यूटन से खींच रहे हैं और इधर भी 50 न्यूटन से, तो दिस बिकम्स अ बैलेंस्ड फोर्स। इसको क्या बोला जाएगा तब? बैलेंस्ड फोर्स। Balanced force. And then the object will not move anywhere, this block will remain in the rest. Rest. Okay, so unbalanced force will cause the motion toward the more force, जिस डायरेक्शन पे ज्यादा फोर्स है उस डायरेक्शन पे मूव करवाता है, and balanced force remain the object in their original state. Clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now we will move to next slide. The block on the table is acted upon by many forces. The force capital F applied by the left hand is being balanced by the force F applied by the right hand. तो जब balance force लगेगा, तो when the body is at rest, it acted upon by the balanced force. The body will not displace, body remains stationary. Balance force से body displace नहीं होगी, body क्या रहेगी? Stationary रहेगी. Is it clear? Yes, ma'am. Now, second point is saying when balanced force act on a body moving with constant velocity, uniform velocity, they do not produce any acceleration in the body. That is, the body continue to move with the same speed and the direction. That means अगर body uniform motion में थी पहले से, अगर ये ब्लॉक जो ऊपर टेबल पे रखा हुआ था, इसके ऊपर रोलर होता, ये स्केट्स होता, कुछ होता, और ये कुछ मूवमेंट कर रहा होता, और इस पे बैलेंस फोर्स लग रहा होता, तो ये सेम स्पीड से ही मूव करता रहता, इसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती। अगर दोनों तरफ से बैलेंस फोर्स लग रहा होता और बीच में हमने रोलर स्केट रख दिया होता,
तो वो सेम स्पीड से ही चलता रहता. इट विल नॉट बी एक्सेलरेटेड. बैलेंस फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करता. इज इट क्लियर? जस्ट Yes, स्पीड ma'am. को मेंटेन रखता, Yes, ma'am. एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करता. तो यानी बैलेंस्ड फोर्स हमेशा ओरिजिनल स्टेट को मेंटेन रखता है. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रखता है, अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में उसे रखता है. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ एग्जाम्पल दे रखा है, रेन ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम द क्लाउड्स एट अ ग्रेटर हाइट ड्रॉप एट फर्स्ट गेन वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. कि जब रेन ड्रॉप्स फॉल कर रही होती हैं क्लाउड से, तो जब वो नीचे आती हैं तो नीचे आते आते उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? ग्रेविटी की वजह से थोड़ी सी उनमें वेलोसिटी आ जाती है. छोटी छोटी बूंदें पड़ रही होती हैं, हमें अच्छा लग रहा होता है, पर जब बहुत तेज तेज बारिश होने लगती है तो हमें भी लगता है ना कि ये तो बहुत जोर जोर से बारिश हो रही है. Excuse me, ma'am. हाँ जी. Ma'am, other link of Hindi class is on the group. Yes, now the next class link has come, so you will be joining that class. I'm going to end this session here. I hope जो भी हमने आज समझा है, you are clear with the changes the force brings to object. ये सारे changes आपको पता चले, and you also know balanced and unbalanced force and few examples. Okay, Is ma'am. it clear to you? Yes, ma'am. ma'am, clear. Okay, so I'm ending the session here. Read from your book. Read this part from your book also. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay.